Hello dear students, this is Chandrasekhar and today we will see how we can identify linear and Bernoulli differential equation. So it is observed that most of the times we are struggling to identify which differential equation is linear and which differential equation is Bernoulli differential equation. So today we will see some tricks to identify linear and Bernoulli differential equation. So let us proceed. So let us proceed for the types of differential equations. First we will know, one should know what are the different types of differential equations. So let us proceed for that. So I will use English as well as Hindi language for better understanding. So here on the screen you can see there are two forms of linear differential equation. The first one is dy by dx plus py equal to q. In that this p and q are functions of x or constant terms. This is the first type of linear differential equation where p and q are functions of x or constant. The second type is dx by dy plus px equal to q where p and q are functions of y or constants. Here in this type p and q are functions of y or it is constant. So we can observe here that type 2 is completely opposite of type 1. You can see this is type 1 linear differential equation and this is type 2 linear differential equation. We can see here type 2 is completely opposite of type 1. Only we have to replace y by x and x by y in type 2. So we will get another form of linear differential equation. Okay. So यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो टाइप 1 है dy by dx plus py equal to q और जो टाइप 2 है dx by dy plus ps equal to q, these both types are opposite of each other. सिर्फ वेरिएबल डिफरेंस वहां पर है, टाइप 2 में y के जगह पर x आ जाएगा, x की जगह पर y आ जाएगा. इन टाइप 1 p and q are functions of x. p और q ये x के फॉर्म में होना चाहिए या कोई कांस्टेंट टर्म होना चाहिए. उसका अपोजिट टाइप 2 में रहेगा. p और q ये जो है ये फंक्शंस ऑफ y या फिर कोई कांस्टेंट होंगे. कांस्टेंट मींस व्हाट? एनी नंबर. So these are two forms of linear differential equation. Now let us proceed for the Bernoulli's differential equation. This is the standard form of Bernoulli's differential equation, that is dy by dx plus py equal to qy raised to n. If the given differential equation is in the form of this, then we can say that the given differential equation is Bernoulli differential equation. Here we can observe that the difference between linear and Bernoulli's. Linear में right hand side में जो दिख रहा है हमें ये q दिख रहा है. Here this q must be the function of x. Here this q must be the function of y, and here the right hand side of this Bernoulli differential equation, it must be the function of x multiplied by function of y. So this is the difference between linear and Bernoulli's differential equation. In Bernoulli's differential equation, right hand side includes both x and y variables in multiplication or in division form. Okay, and in linear differential equation, particularly in type 1, right hand side must be the function of x or constant. In type 2 linear differential equation, that is dx by dy plus ps equal to q, here right hand side must be the function of y or constant. So this is the types of differential equations. Now we can proceed for how we can identify which differential equation is linear or which differential equation is Bernoulli differential equation. So let us see some examples. बहुत बार हम समझ नहीं पाते हैं कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर है या बर्नौली.
तो अभी मैं कुछ आपको ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन ये लीनियर होगा या बर्नौली होगा। लीनियर के लिए ये दो फॉर्म हमें पता होना चाहिए। दिस आर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, these two are linear differential equation and this is Bernoulli's differential equation। तो एक आसान सा ट्रिक मैं बताऊंगा। Let us proceed for the example 1। This is example number 1। सबसे पहले किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो टाइप 1 का है या टाइप 2 का है या टाइप 3 का है। टाइप 1 हम इसे बोलेंगे, टाइप 2 ये उसको बोलेंगे हम, और टाइप 3 जो है वो हम बोलेंगे बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन ओनली वी कैन प्रोसीड फॉर इट्स सॉल्यूशन। सो लेट अस सी सम ट्रिक्स टू आइडेंटिफाई। कुछ हम ट्रिक्स देखेंगे अभी। नाउ सी हियर एग्जांपल नंबर 1। हियर वी कैन सी द डेरिवेटिव टर्म इज dy by dx। ओके, दैट्स फाइन। अगर dy by dx है इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो टाइप 1 या टाइप 3 का ही हो। कीप रिमेंबर दिस। अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में dy by dx है तो जरूरी नहीं है कि वो टाइप 1 का या टाइप 3 का ही हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट द सेकेंड टर्म, जो सेकेंड टर्म होगा, वी कैन ऑब्जर्व हियर टाइप 1 इज dy by dx plus py equal to q। अगर कंप्लीट इक्वेशन में वी कैन सी हियर, अगर ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन में देखूं, अगर कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ओनली अब वहां पर एक एक्सप्रेशन है y का, ओनली वन एक्सप्रेशन ऑफ y इज देयर, मतलब एक सिंगल y होना चाहिए पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में और y का और कोई टर्म नहीं होना चाहिए। मींस इफ देयर इज ओनली सिंगल टर्म ऑफ y व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ py, ठीक है, दिस p कैन बी एनी कांस्टेंट टर्म और एनी फंक्शन ऑफ x, दैट इज फाइन। बट पूरे इक्वेशन में एक सिंगल y होना चाहिए, ओनली वन एक्सप्रेशन ऑफ y। यू कैन ऑब्जर्व हियर इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही सिंगल एक्सप्रेशन ऑफ y और y कहीं भी नहीं है, एक्सक्लूडिंग दिस dy by dx। dy by dx वाला टर्म छोड़कर पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो ओनली वन एक्सप्रेशन ऑफ y इज देयर और कोई y का टर्म नहीं है। So we can say that this given differential equation, that is example number 1, is in the form of dy by dx plus py equal to q। ये टाइप 1 के फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में there is only one expression of y। py जैसा एक ही टर्म होना चाहिए, ओनली सिंगल y पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखना चाहिए। Then we can say that it is of type 1 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके आगे आप प्रोसीड कर पाओगे। इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, एग्जांपल 1 को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे एंड देन यू कैन प्रोसीड फॉर द सॉल्यूशन। लाइक आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड देन वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन। नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर द सेकंड एग्जांपल। जस्ट ऑब्जर्व इन सेकंड एग्जांपल whether there is only one expression of y, means only single y यहाँ दिख रहा है, एक सिंगल y जो कि सिर्फ इस y जैसा होना चाहिए, py एक सिंगल y ही होना चाहिए, पूरे एक्सप्रेशन में एक सिंगल y होना चाहिए, जबकि पूरे एक्सप्रेशन में एक सिंगल y नहीं है, y स्क्वायर है और यहाँ भी y दिख रहा है। तो देयर आर टू एक्सप्रेशन ऑफ y, एक सिंगल y ही होना चाहिए जो कि सिर्फ py जैसा हो, तो हम उसको बोल पाएंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो टाइप 1 का डिफरेंशियल इक्वेशन है। यू कैन सी हियर, यहाँ पर y की दो एक्सप्रेशन है, y स्क्वायर एंड tan इनवर्स ऑफ y के साथ भी y आ गया, तो ये टाइप 1 का डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 में दिख रहा है हमें यहाँ पर ओनली वन एक्सप्रेशन ऑफ x। यू कैन सी हियर टाइप 2 इज dx by dy plus px equal to q। if the given differential equation includes only one expression of x, मतलब एक सिंगल वेरिएबल x ही थ्रू आउट डिफरेंशियल इक्वेशन में दिखना चाहिए, x का और कोई टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन वी कैन से दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ टाइप 2। पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में एक सिंगल एक्सप्रेशन ऑफ x होना चाहिए, सिंगल x और कोई x नहीं होना चाहिए, ना ही x का कोई पावर होना चाहिए, ना ही x किसी फंक्शन के एंगल में होना चाहिए,
सिर्फ एक सिंगल एक्सप्रेशन ऑफ x दिखना चाहिए जो कि किस तरह का हो, px जैसा हो, सिंगल एक्सप्रेशन ऑफ x. Now here we can see here there is single expression of x here, single expression of x. और कोई x है क्या? नहीं है. थ्रूआउट डिफरेंशियल इक्वेशन में और कोई x का टर्म नहीं है. Only single expression of x is there. So we can say that this second example is of type 2. मतलब ये जो second example है ये dx by dy plus px equal to 2k टाइप वाला होगा. उसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और देन उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व कर पाएंगे. Now let us proceed for third example, example number 3. Here we can see that अब यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं. अब हमने पहले दो एग्जाम्पल में देख लिया how we can identify linear differential equation. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में एक सिंगल एक्सप्रेशन ऑफ y है, क्या एक सिंगल टर्म है y का जो सिर्फ y होना चाहिए, ना ही y का कोई पावर होना चाहिए, ना ही y का एक से ज्यादा टर्म होना चाहिए. तो हम उसको बोलेंगे टाइप 1 का एग्जांपल. अगर पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में एक सिंगल एक्सप्रेशन ऑफ x है, मतलब ना x का कोई पावर होना चाहिए, ना ही वो x किसी के फंक्शन के एंगल में होना चाहिए, सिर्फ एक सिंगल एक्सप्रेशन ऑफ x होना चाहिए, देन वी कैन से दैट इट इज ऑफ टाइप 2. अब एग्जांपल नंबर 3 देखा जाए तो सिंगल एक्सप्रेशन ऑफ y वहां पर है क्या? नहीं है. y के दो टर्म है. देयर इज नो सिंगल एक्सप्रेशन ऑफ y. क्या सिंगल एक्सप्रेशन ऑफ x है कि यहाँ पर जो सिर्फ x दिखना चाहिए, x किसी के एंगल में नहीं आना चाहिए. यू कैन सी हियर x यहाँ tan x के एंगल में है और x के दो टर्म्स आ गए यहाँ पर, तो सिंगल एक्सप्रेशन ऑफ x भी नहीं है. तो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. कौन सा होगा? बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर वो टाइप 1 में नहीं बैठता, इफ देयर इज नो सिंगल एक्सप्रेशन ऑफ y then it is not of type 1. If there is no single expression of x then it is not of type 2. Then it must be a Bernoulli's differential equation. अगर वो टाइप 1 में नहीं बैठता है, टाइप 2 में नहीं बैठता है, तो वो Bernoulli's differential equation ही होगी. ठीक है. And then we can proceed according to the method of Bernoulli's differential equation. इसको किस तरह सॉल्व करते हैं ये मेथड हमें पता होना चाहिए. And then we can proceed for that. Now let us proceed for example number 4. Example number 4, you can see here there is no single expression of y. There are two terms of y. There is no single expression of y. There is no single expression of x because यहाँ पर only one x, सिर्फ एक ही x दिखना चाहिए. x यहाँ भी दिख रहा है, x इसके पावर में भी दिख रहा है. So there is no single expression of x. There is no single expression of y. So it is not of type 1. It is not of type 2. So we can say that it is of Bernoulli's differential equation. ये Bernoulli's differential equation होगा. इसको आपको Bernoulli's differential equation के मेथड से सॉल्व करना होगा. Let us proceed for example number 5. Now let us see here क्या इस पूरे differential equation में सिंगल एक्सप्रेशन ऑफ y है क्या? पहले हम टाइप 1 के बारे में ही सोचेंगे. There is no single expression of y. y का सिंगल एक्सप्रेशन सिर्फ y ही होना चाहिए, ना ही y का कोई पावर होना चाहिए, ना ही वो y किसी के एंगल में आना चाहिए. ठीक है. So there is no single expression of y. We can see here there are two expressions of y, y cube and y. Single expression of y py जैसे ही होना चाहिए, सिंगल y होना चाहिए. ठीक है. Then only we can say that it is of type 1. There is no single expression of y, but we can see here there is a single expression of x. पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में एक सिंगल x ही है और x का कोई टर्म नहीं है. If there is only single expression of x is there, we can say that it is of type 2. टाइप 2 में हम देख रहे हैं कि वहां पर सिंगल एक्सप्रेशन ऑफ x होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेकेंड टर्म. ठीक है. तो अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में एक सिंगल x दिख रहा है, थ्रूआउट एक ही x दिख रहा है और वो सिंगल x ही होना चाहिए, लाइक इट इज ऑफ द फॉर्म px. तो एक सिंगल x दिख रहा है, x का और कोई टर्म नहीं है, ना ही x का कोई पावर है और कोई टर्म है, और x का कोई टर्म है ही नहीं वहां पर. वहां सिर्फ एक सिंगल x दिख रहा है, so it is of type 2. सिंगल y दिख रहा है तो टाइप 1, सिंगल x दिख रहा है तो टाइप 2. अगर दोनों भी नहीं बैठता है तो बर्नौलीज इक्वेशन टाइप 3. ठीक है. सो इट इज ऑफ टाइप 2 एग्जांपल. तो लेट अस प्रोसीड फॉर एग्जांपल नंबर 6. नाउ ये आपने देखा है एग्जांपल नंबर 5 जो है वो टाइप 2 का हो गया है, तो उसको टाइप 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें. टाइप 2 मींस दिस वन dx by dy plus ps equal to q. इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें पहले और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. बाय टेकिंग p and q and then integrating factor, उसके बाद हम सॉल्यूशन लिखते हैं and then we can proceed for the final answer.
Now let us proceed for example number 6. Example number 6 आप यहाँ पर देख सकते हो. There is no single expression of y. पहले हम y के लिए चेक करेंगे क्या थ्रूआउट इक्वेशन में सिंगल एक्सप्रेशन ऑफ y है क्या? नहीं है. यहाँ पर y के दो टर्म है. So there is no single expression of y. सिंगल एक्सप्रेशन ऑफ y जब मैं बोल रहा हूँ तो सिंगल y ही दिखना चाहिए. Only y. There should not be any power of y. ना वाई स्क्वायर होना चाहिए, ना वाई क्यूब होना चाहिए, ना ही वो वाई किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल में होना चाहिए. ओनली वन एक्सप्रेशन ऑफ वाई, सिंगल वाई थ्रूआउट इक्वेशन में अगर दिखता है तो वो टाइप 1 का होगा. सिंगल एक्स अगर थ्रूआउट डिफरेंशियल इक्वेशन में दिखता है ओनली वन एक्स तो वो टाइप 2 का होगा. अगर दोनों में नहीं बैठता है तो वो टाइप 3 का होगा. दैट इज बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, सो वी कैन सी हियर इन एग्जांपल नंबर 6 देयर इज नो सिंगल एक्सप्रेशन ऑफ वाई. Again, there is no single expression of x. x यहाँ राइट हैंड साइड में भी है. So it is of not type 1, it is of not type 2, it is of type 3. That is Bernoulli's differential equation. And then let us proceed for the example number 7. Now you can easily identify that whether example 7 is of type 1, type 2 or type 3. Now see here there is no no single expression of y because y is there along with trigonometric function. Here also y is there along with trigonometric function. There are two terms of y, so it is not of type 1. Okay, again we can see here there are two terms of x. No single expression of x, no single expression of y, no single expression of x. So it is of not type 1, it is of not type 2, it is of type 3 example, that is Bernoulli's differential equation. And we can proceed these examples as per the method of Bernoulli differential equation by using some substitution to convert it into linear form. So in this way we can identify the given examples, which is with the given examples whether the given example is linear or Bernoulli's differential equation. तो ये सबसे आसान वाला ट्रिक है जो हम यूज कर सकते हैं. एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं. अगर थ्रूआउट डिफरेंशियल इक्वेशन में एक सिंगल y दिखता है तो वो टाइप 1 का होगा. अगर एक सिंगल x दिखता है तो वो टाइप 2 का होगा. अगर दोनों भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वो टाइप 3 का होगा, यानी कि बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन. So this is all about identifying linear differential equation and Bernoulli differential equation. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. Now in our next video we will see how we can identify exact differential equation. Thank you.